Hello guys, welcome back to the student platform. Myself Srujan BR. Guys, we have completed almost 4 sections where we have studied like completely, yeah, 4 sections where we have just done up to 75 questions of a 2018 paper. And in this section, we will just try to complete the whole, like still 25 questions are remaining. We can complete that whole thing and we can go with the next paper, next series of paper, okay, today. Okay. I hope everyone are doing well. Okay, students, let's start that. Okay. Yeah. In the last section, I just stopped up to 75th question was completed and 76th question. So we can concentrate on the 76th question. Yeah, come now. Arrange the following in decreasing order of oxygen-oxygen bond length. Guys, do you know how to find the bond length? Especially bond length, bond strength, and bond energy in strength same, and bond angle. There are some things like directly depends and inversely depends on a bond order. Okay, I just write that thing here. Normally, bond order directly proportional to bond strength, proportional to bond angle, inversely proportional to bond length. Okay, if bond order is more, if bond list, see, if a bond order means like number of bonds, right? Like number of bonds. Okay, bond order means number of bonds. If bonds, like if bond strength is more, like if triple bond, it means that carbon carbon triple bond, it means that their strength is more, so they come nearer, right? They come nearer. So what happens? Bond length decreases. That's what telling. If bond order is increasing, bond length is decreasing. Okay, so for the given question, they just asked here, what are the order for a bond length? So if a bond strength is, sorry, if bond order is increasing, bond length is decreasing. So just check the bond order for a oxygen 2, O2 plus, O2 2 minus, and a O3. Is that a O3? Yeah, it's O3. Fine. See, look here. So normally, we should find a bond order for O3, O2, O2 plus, and O2 2 minus. First, we can go with the O2. Okay, so just keep one thing in mind. If 14 electrons, like below 14 electrons, pi comes first. Okay, if more than 14, like take 16, more than 14, 16 electrons, more than 14, like greater than 14, lesser than 14, sorry, less than 14, greater than 14, 16 electron, sigma comes first. Okay, for O2, how many electrons are there? Oxygen are 8 electrons. How many electrons are in oxygen? 8. So 8 into 2. Totally in O2, there are 16 electrons. Okay, now go sigma. I'll just show one example for a O2. Okay, then the remaining I'll just give a shortcuts. I'll show you a shortcut. Is like it makes you done with in a less time. Okay. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, more than 16 electron. So pi sigma comes first. Sigma 2p z 2 pi 2px2
pi 2py. How many electrons, guys? 10 electrons, 10, 14, 15. Sigma star 2px. Sorry, pi star 2py. So how many electrons? 1 electron. 1. Okay. How many? Just count now. For O2, 16 electron. There should be a 16 electron total here. Okay. 2, 16 electrons are there. So go with the bond order. Bond order formula. Bond order is equal to number of bonding orbitals. Number of bonding orbitals minus number of anti-bonding orbitals divided by 2. Okay. This is bonding orbitals. BO is a bonding orbital. Okay. BO is a bonding orbital. Okay. So ABO is a anti-bonding orbitals. Anti-bonding orbitals. Okay, fine. So look here. As I told you, bonding orbitals, how many bonding orbitals? 1, like a 2, 2 to 4, 6, 8, 10. 10 bonding orbitals minus anti-bonding. 4, 5, 6 divided by 2. So how much? It will be 4 by 2. It will be 2. So bond order of O2 is what? Bond order of O2 is 2. Okay, guys, see. So in this way, you can find for all. Okay, so come here. I'll just show you a simple way. Okay, just keep these things in mind. Just take bond order 3. This is a bond order 3 for 14 electrons. This is number of electrons. Okay, 3. Go on increasing 15, 16, 17, 18. So just start decreasing here 14. Sorry, decreasing 13, 12, 11, 10, 9, 8. Okay. So just go on decreasing in the bond order also. 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0. Okay. So same here. 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5. Look, this is a bond order for this like 14 electrons. The bond order will be 3, 15 electrons. Bond order will be, this is a shortcut method where if you know the number of electrons, you can directly know the bond order. What is the bond order for these followings? Okay. If you know the number of electrons, you can find out the bond order easily. Okay. So now for us, the main task is, what is the bond order of O3, guys? Can you know what is the bond order for O3? Yes. Structure of O3. How do the O3 looks? Is this a O3? Yes, is this a O3? Yeah, it's a O3, right? Ozone layer. Yeah, ozone has a bond order of a 1.5. Just keep in mind, okay? Ozone has a bond order of 1.5. Okay, guys, come. Now, just write the order of this. Just now, write the order of oxygen has a bond order. Oxygen has a bond order of 2, and O2 plus, like it has 16 electron. O2 plus has a -1 electron, 15 electrons. So it will be how much? 2.5, right? Yeah. So now for O2, 2 minus, it will be 1. How many electrons? Sorry, how many electrons? It is 70 electrons. 70, like 16, 17, 80, sorry, 18 electrons. So bond order will be 1. And O3 of ozone will be having a bond order of 1.5. Okay, 1.5. So just see bond order. This is a bond order. So decrease in bond order, increase of a bond length. Okay, decrease of bond order, increase in bond length. So the question they are asking, what is the
arrange the following decreasing order of bond length. So sorry, bond length is decreasing. So just see bond length. Which has more bond order? 2.5 is for what? Is for O2 plus. This has a more bond order. First, more sorry, first more bond order of a bond. I'm talking about the bond order. Okay, bond order. Next with the which one has less? Then oxygen second. Then go with the ozone third, fourth. So this is a trend of a bond order trend. So now use a decreasing order. Means like first increasing bond length. This has more bond length. Third has a more bond length. Okay. So third one increasing order. So third one, next a fourth one, next a fourth one, third, and next first. Yes, this is the increasing order of bond order. So thing is that first comes O2 2 minus, more bond order, so more bond length. Next with the O3, more bond length, and next come with the O2. Next come with the O2 plus. This is the bond length order. Bond length order, guys. Fine. Okay, this is a bond length order. Okay, guys, fine. We have done with the 76th question. We can go with the 77th question. What the 77th question says? It is that PCl5, phosphorus pentachloride, does not react with what? Yeah, it reacts with all among this. It reacts with A, B, C, D. But thing is that like slow process, like in every this in with acetic acid and the phenol, with the ethanol and with H2SO4, it reacts. But the thing is that in presence of with the phenol, it reacts slowly. Like the product obtained will be a mild product, so it will be very less product, and so it reacts very slowly. That the thing here, I just show the reactions for everything, but the answer is the phenol. I'll just tell you why. Because it shows a mild rate, like the rate of the product formation is very slow. Okay, see, first I'll show you the acetic acid. Okay, CH3COOH plus PCl5 react to give a acyl chloride. Okay, is acyl chloride. Then it gives a phosphorus oxychloride, POCl3. What is this? This is phosphorus oxychloride. Okay, so we got POCl3, and also it gives with the HCl. Okay, HCl. Now go with the second, with the phenol. What does it gives the phenol? Actually, it react with the three phenols, 3C6H5OH groups with the PCl5, and it gives with the mild product of a OPH, and OPH. Okay, plus gives a 3 amount of HCl. And also third one, ethanol, right? C2H5OH plus PCl5. What does it give? It gives the same. It gives the SO2. Sorry, C2. What is this, guys? C2H5Cl. Ethyl chloride, right? Ethyl chloride plus it gives a phosphorus oxychloride also, POCl3 and HCl. Okay, now do with the H2SO4. What does it give with the H2SO4, guys? H2SO4. H2SO4 plus PCl5. It gives a SO2Cl2 plus POCl3, phosphorus chloride plus HCl. Yeah. See, guys, you can see the difference here. Now, actually, it has given POCl3 in this, and POCl3 in this. But the main thing is that in phenol in presence of PCl5, it has given this, right? You can see the difference. So this is very mild product.
mild product is obtained. Okay, so this is the main difference. Okay, so the option second, it gives it does not react, but it's react to give a mild product. Okay, like it may be some drastic condition, or maybe using very high temperature, it reacts to give this product. Okay, but it won't give a POCl3 as a byproduct. Okay, fine. Guys, come with the this. Yeah, phenol is answer. Okay, fine. Next, come with this question. Partial pressure question, 78th question. What is 78th question is talking about? Just read it once. Partial pressure of a carbon dioxide in a mixture of carbon dioxide and N2 is a 1 atm. The partial pressure of a carbon dioxide in a mixture of carbon dioxide and N2 is a 1 atm. It means a partial pressure of a carbon dioxide is a 1 atm, while total pressure of the mixture is 5 atm. Okay, is 5 atm. Now, mole fraction of a nitrogen in the mixture is, yes guys, look, it's a good question. They have just not gave you the in a typical way. They just directly gave you this question. That they're directly asking this type question. It is very easy. Okay, it's not more complicated. The thing you have to know is that partial pressure is given. Partial pressure of carbon dioxide is 1 atm, and total pressure is 5 atm. Okay, so you have to find the mole fraction of N2 is equal to question mark. Okay, just look, it's a simple question. So I think I just need to erase this, or else, yeah, come here, I'll just explain you here. Okay, yeah, that what they have given, the partial pressure of a, sorry, I just start with the starting way. Okay, they are told that there is a mixture of carbon dioxide and a N2. Okay, mixture. This is a mixture. So in this mixture, they are given the partial pressure of a carbon dioxide as a 1 atm, and a partial and total pressure they are given 5 atm. Okay, and you have to find mole fraction of a N2 is equal to question mark. Okay, guys, see, you know that total pressure is equal to partial pressure of carbon dioxide plus partial pressure of N2. So what is the total pressure? Total pressure is 5 atm. What is the partial pressure of carbon dioxide? It is 1 atm. So what will the partial pressure of N2, guys? So partial pressure of N2 will be 5 minus 1, that is a 4 atm. You got a partial pressure. Okay, so what is mole fraction? You know, mole fraction is equal to partial pressure of mole fraction of N2 is a partial pressure of a N2 divided by total pressure. Sorry, total pressure. Okay, see, now you know 4 atm is a partial pressure of N2, and total pressure is 1 atm. Are you getting? Yeah, just substitute now. Just substitute and you will get answer. Sorry, 5 atm is a total pressure. Just substitute here. What is your partial pressure of N2? It is a 4. Total pressure is 5. So calculate it. 0.5 is a 40. Bus 0.8 is the mole fraction of our N2 is 0.8. Just simple. Okay, I think you all understood about this thing. This is easy also. It's not so complicated. It's like a direct thing. Okay, yeah, fine. Come to the question now. Yeah, look here, 0.8. They are given the 0.8. Fine. Yeah, fine. So now go with the fifth. It's a 79 question. Okay, guys, look in what they're asking in 79 question. In 79 question,
they're asking that pH of the solution produced by mixing of pH of the solution is produced by mixing equal volumes of pH is produced by mixing of equal volume of 2.0 into 10 power minus 3 mole of HClO4 and 1.0 into 10 raised to minus 2 moles of KClO4, potassium perchloride, and HCl4 is what? What you have to find the pH. pH of volumes of pH of KCl4 and HCl4, like total pH of a solution. Total pH of a solution. Of a solution. Okay, how can you find this? Guys, think, what is this? Can you know what is this? Yeah, it is a salt, K plus and ClO4 minus. It's a salt, right? Do you think this salt will change the pH of the solution? Do you think that it changes the pH of a solution? See here, pH plus ion concentration is that it shows the pH plus ClO4 minus. Do you think that salt changes the pH of a solution? No, guys, no. Salt won't change the pH of a solution. So you should find only the pH from this concentration. Okay, just on adding the salt into the any pH, known pH, it increases only the volume and does not change the pH. Okay, because see here, that depends. And also there is a condition, like you should add a salt of this kind, like it should not be any hydroxyl ions or any H plus ions. That salt does not affect anything. Okay, that salt does not, this type of salt which is not containing H plus or OH minus concentration does not affect the pH of a solution. So fine, look here. So we have given the H plus concentration is 2.0 into 10 power minus 3 molar, and we should not consider this KClO4, not considered. Not considered. Why, guys? Why it is not considered? Okay, it is not considered because, as I told you, salt does not affect the pH of a solution. So find here. So for this, you know the pH of a solution. Solution is equal to concentration divided by number of ions. Okay, so here, sorry, it's not a number of ions. Molecules, we can tell that. Okay, there are two, right? Concentration, pH of solution, we can consider only 2.0 into 10 power minus 3 mole divided by 2, because we have two compounds, right? One is HClO4 and one is a one is a HClO4 and one is a potassium perchloride. Okay, so we have considered 2, and we get a hydrogen concentration. We get a concentration H plus concentration as, sorry, it's not a finding concentration H plus concentration of solution. Concentration of solution is equal to concentration by total concentration. This is total concentration divided by total number of molecules. Total number of molecules. Okay, total concentration by total number of molecules. So total concentration is 2.0 in 10 power minus 3. We should not consider the concentration of a KClO4 because it is a salt. And next, total molecule is 2. So we get a 10 power minus 3 molar. So we know the formula of a pH. What is formula of pH?
pH is equal to negative logarithm of H plus concentration. Okay, so what is H plus concentration? We know that H plus concentration is equal to 10 power minus 3, right? So just substitute here. What do you get? So 3 into logarithm of 10 is 1. So we get a pH as a 3, guys. Fine. We got answer, right? So be careful in this. Okay. Be careful in this part. Finding the total volume concentration. Okay. I just tried a formula of that here. Total volume concentration is equal to total volume concentration is equal to total concentration divided by total number of molecules. Okay, fine. Well, guys, I hope this affects you that pH is equal to 3. Fine. So we got that pH is equal to 3. Okay, fine. Now we can go with the next question. Guys, what is the next question? Come here. 18th question. For a simple paramagnetic compound, which one of the following is true? If there comes any paramagnetic susceptibility, they're talking about the paramagnetic susceptibility, what will be the thing? For a paramagnetic susceptibility, we have to go with the normal paramagnetic susceptibility temperature difference curve, because they're talking about the same, right? Because like magnetic susceptibility decreases initially and then increases with decrease in temperature. Magnetic susceptibility decreases with decrease in temperature. Magnetic susceptibility increases with decrease in temperature. Yeah, right. So we have to go with the this curve, right? We have to go with the paramagnetic susceptibility. Guys, look here. For a simple paramagnetic compound, so now we have to know the graph for this, because through the graph we can answer this question. So I'll just show you the different type of graphs for a magnetic susceptibility for a paramagnetic, ferrimagnetic, ferro and ferrimagnetic, antiferromagnetic and a diamagnetic. Okay, those 4 graphs will be helpful for any questions which they can ask. Okay, everything is filled. Okay, guys, see you. I'll just show you. Oh, sorry. Okay, look. Now, for a diamagnetic compounds, for diamagnetic, the graph will be in this way. Wait, guys, it's consuming more time. Oh, this. Fine, let be. Oh.
Yeah. Okay, guys. Sorry for making so long time. Uh, Fine. See, this graph was for diamagnetic susceptibility for diamagnetic compounds. Diamagnetic compounds, the graph magnetic susceptibility, size magnetic susceptibility. Okay. Size magnetic susceptibility. Okay. So नीचे कौन सा है? Needed temperature है, ठीक है? Temperature in kelvins. Okay, see, for a magnetic for diamagnetic compounds, temperature is in like magnetic susceptibility is independent of temperature, like constant. It is at constant level. Okay, this is a constant curve. Okay, it is a constant curve, does not change. And now for antiferromagnetic, antiferromagnetic x by temperature will be okay. This temperature is right. This temperature is known as a Niels temperature. Okay. After Niels temperature, this part will be paramagnetic. Right? Okay. This is for antiferromagnetic compounds, but antiferromagnetic compounds after a Niels temperature, after the rise of temperature, after it reaches Niels temperature, it changes this property as a paramagnetic property. So now we come for a paramagnetic property, which what we wanted. Paramagnetic. Okay. X temperature, and thus decreases as increase in temperature. Temperature and X will inversely proportional to this. Okay. And for ferri or ferromagnetic, for ferri or ferromagnetic, curve will be in this way. Okay. This temperature is critical temperature. Okay. TC. Fine. Okay, guys. This is the graph for a different temperature, different property. Okay, this is for diamagnetic, this is for ferri or ferromagnetic, X and temperature. Okay, fine. I think you all got this point. Okay. Look here. This is for diamagnetic, this for paramagnetic, and this for antiferromagnetic, and this for ferromagnetic. See, X, T are inversely proportional. So just come and answer this question now. Magnetic susceptibility decreases initially and then increases with decrease in temperature. No, what was this? This is for a antiferromagnetic. No. Magnetic susceptibility decreases with decrease in temperature. No, that is inversely proportional. Magnetic susceptibility increases with decrease in temperature. Yes, it's right answer. It is right answer. Okay. Magnetic susceptibility increases initially and then decreases with decrease in temperature. No, this is the same. I think these two options are same. Okay, fine. So we need an answer is that magnetic susceptibility increases with decrease in temperature. Yes. See, as we know, the curve as temperature is decreasing, right? See, temperature is decreasing, susceptibility is I. Can you see susceptibility? Yes, it is more. It is less temperature. At less temperature, it is more. Okay, fine. Okay, guys. I think I answered your question. Just keep that graph in a mind. They can ask in a different way also. Okay, fine. Now go with the next question. Next question is that 81st question. Okay, what does 81st question tells about that? Think what is 81st question tells that two isotonic solutions will have a same. Yes, what is isotonic solution, guys?
What is isotonic solution? Isotonic solution means the two solutions having the same osmotic pressure is called the isotonic solution. What is isotonic solution? Two solutions, two solutions have same osmotic pressure. Okay, two solutions have a same osmotic pressure are called as a isotonic solution. As we know, will have a same osmotic pressure. That is called isotonic solution. Okay, fine. We can go with the 82nd one. Melting point of a chlorides of alkali metals decreases within the order. Guys, for this, melting point is related to the lattice energy. Melting point lattice energy, the order of lattice energy is equal to the order of a melting point. Okay, so for finding the melting points of a chloride of alkali metals, we should find the order of a lattice energy. Okay, what will be the order of a lattice energy, guys? Yeah, just go with that. Lattice energy okay, so order for lattice melting point and lattice energy have same order. Okay, so what is the lattice energy order? So lattice energy is inversely proportional to the radius of a cation and the radius of an anion. So if a radius increases, lattice energy decreases. So for alkali metals, they are given with the cesium, they are given with the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So lithium has a least radius, sodium, potassium, lithium has a more lattice energy than a sodium, than a potassium, than a rubidium, than a cesium, because cesium has a larger radius. So less lattice energy, because we know that lattice energy is inversely proportional to radius of a cation, right? Yeah, this is SEL, Se plus, right? CS plus, right? Yeah, fine. अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम का ऑर्डर पता चल गया हमको। हमको क्या चाहिए? हमको मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर चाहिए ना, बस यही तो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मेरे पहले ही बोल चुका है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल्स होता है ना, वो और लैटिस एनर्जी का ऑर्डर दोनों सेम ही है। अब देख, अब लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, नेक्स्ट सीसियम क्लोराइड है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, बस हो गया, को आंसर मिल गया। ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया है ना। चल ठीक है, हम चलेंगे अभी 83rd के ऊपर। ठीक है, मैं आपको रेडियस का ऑर्डर भी बता देता हूं। ठीक है, रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? रेडियस का ऑर्डर होता है, सीसियम का रेडियस ज्यादा है, नेक्स्ट रुबिडियम का ज्यादा है, और पोटेशियम का ज्यादा है, और सोडियम का ज्यादा है, उसके बाद लिथियम का आता है ना। ठीक है, बस ए रेडियस का ऑर्डर है, आर ऑर्डर एंड दिस इज द इनवर्स। ठीक है, बस अब देखो 83rd क्वेश्चन के ऊपर आ जाना। 83rd क्वेश्चन, व्हाट डज 83rd क्वेश्चन सेज? रेसिडुअल एंट्रोपी इज द एंट्रोपी ऑफ व्हाट? आपको पता होना चाहिए ना, रेसिडुअल एंट्रोपी क्या है भाई? रेसिडुअल एंट्रोपी होता है ना, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज दिस? डिफरेंस बिटवीन द एंट्रोपी ऑफ अ, एक मिनट,
चल ठीक है. What is residual entropy? Residual entropy is the entropy between what? Between the non-equilibrium state and the crystalline state at absolute zero temperature. ठीक है? At absolute zero temperature. समझ रहे हो? इसको मैं इसको एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं. क्या होता है? 84th है ना ये वाला क्वेश्चन? नहीं, 83rd क्वेश्चन है. 83rd question. Residual entropy. Residual entropy is the entropy between non-equilibrium of a non-equilibrium state. Non-equilibrium state and difference between the non-equilibrium crystalline state. ठीक है, non-equilibrium state. ठीक है, state and a crystalline state at absolute zero temperature. At absolute zero temperature. At absolute zero temperature. At absolute zero temperature, the difference between the entropy is called as a residual entropy. Okay. अब देखो, absolute zero temperature पे residual temperature बोलना है कब? At absolute zero temperature हम बोलता है ये residual entropy है. अब हमारा आंसर देखो क्या होना चाहिए? Entropy of isolated system? ना. Undergoing reversible reaction? No. Equilibrium? No, it's a non-equilibrium condition. Non-equilibrium है तो क्या होना चाहिए? सिस्टम एट ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ठीक है, बस देख लो 83 क्वेश्चन का. देखो 83 क्वेश्चन का है ही है. ठीक है, एंट्रोपी बिटवीन अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड अ क्रिस्टलाइन स्टेट. ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, नॉन equilibrium state and a crystalline state. Non-equilibrium state and crystalline state. Okay, fine. Non-equilibrium state and crystalline state. So अब चलेंगे हम 84th के क्वेश्चन पे ऊपर. 84th क्वेश्चन देखो. Although carbon and oxygen are constituents of a carbonate and oxalate, the reason behind a oxalate being an interfering anion Q by carbon and oxygen are constituent of a carbonate and oxalate. Carbonate and oxalate. Reason behind the oxalate being an interfering anion Q. Higher oxidizability of oxalate than carbonate? Nahi. Higher reducibility of oxalate and carbonate? Nahi. Higher chelating ability of oxalate and carbonate? देखो ऑक्सीडेट के पास ज्यादा चलेटिंग इफेक्ट है क्योंकि ऑक्सीडेट फॉर्म करता है कि कितना मेंबर है? 4 मेंबर. ठीक है, ऑक्सीडेट 4 मेंबर का रिंग बना सकता है, 4 मेंबर चलेशन करता है. ठीक है, इसके लिए उसका हायर चलेटिंग एबिलिटी है कंपेयर टू कार्बोनेट. ठीक है, हायर पोलराइजेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेट एंड कार्बोनेट नहीं, बस यही है. ठीक है, क्योंकि हायर चलेटिंग एबिलिटी है, ऑक्सीडेट ज्यादा चलेशन करता है. इसका मतलब है कि वो ज्यादा मतलब 4 मेंबर्ड रिंग बनाता है, लेकिन कार्बोनेट नहीं बन सकता. ठीक है, चलेशन कार्बोनेट नहीं बन सकता है. ठीक है, अब चलिए हम 85th क्वेश्चन के ऊपर. 85th क्वेश्चन. The major product formed in the dinitration of a 4-bromotoluene.
ठीक है, बस अब देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डाइनाइट्रेशन ऑफ 4-ब्रोमोटोलिन। 4-ब्रोमोटोलिन क्या है भाई? 4-ब्रोमोटोलिन, 4-ब्रोमोटोलिन। टोलिन क्या है? पहले टोलिन लिखो, यही है ना टोलिन, यही है टोलिन। अभी 4 ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन करो, 1 2 3 4, ठीक है, ब्रोमो हो गया। 4 ब्रोमो टोलिन। अब इसके साथ 2 टाइम्स टाइम्स नाइट्रेशन करना है। हम मैं पहली बोला है कब? एमसीबीपीए के साथ कोई रिएक्शन किया है ना हमने, H2SO4 का डायरेक्ट अटैच नहीं करना है ऐसे, हाँ, HNO3 है इसका कैटेयन, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिल आता है NO2+, ठीक है, NO2+, ठीक है। इसका नाइट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप नाइट्रेशन कहां पे आता है? ब्रोमीन CH3, ठीक है। अब नाइट्रेशन को देखो, CH3 क्या है भाई? CH3 रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। रिंग एक्टिवेट ग्रुप मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट करना है, लेकिन पैरा तो फील्ड है, पैरा के साथ सब्स्टिट्यूशन है, अभी 2 ही जगह बचा है, वो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड है। हम अटैक कर लेंगे इधर NO2, ठीक है, NO2। अब है कहानी है, अब मजा है। देखो NO2 हो गया, फिल हो गया। अब किसको देखेंगे? अब तो इधर है, क्या है? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ए रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन है ना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इसका प्रेफरेंस है इधर और इधर, प्रेफरेंस है किसका? ब्रोमीन का। और CH3 का ऑर्थो पोजीशन है, बचा हुआ है, लेकिन NO2 है, ठीक है। इससे वजह से हमको अभी है सब्स्टिट्यूशन आता है, ब्रोमीन के पास ही है, ठीक है। अभी हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है कहां पे भाई? हाँ, मेटापोजिशन टू अ CH3 ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप, ठीक है भाई, बस यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो ये वाला कहां पे है, देख ले, हाँ, देखो इधर है ना, बस यही है हमारा। जस्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखना है, ठीक है। अभी मैंने बोला CH3 है ना, इज अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्टिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड पैरा, लेकिन PR है ना, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा ओनली, ठीक है। दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन एलोजेंस होता है ना, एलोजेंस, ऑल एलोजेंस ऐसे ही काम करता है, डायरेक्टिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, बस। अब चलिए, हमारा हो गया 85th क्वेश्चन, आंसर मिल गया डी। हम चले अभी इलेक्ट्रॉन्स 86 के ऊपर, ठीक है। क्या पूछ रहा है 86 क्वेश्चन? 86 पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन स्पिन एज आइगन वैल्यू। आपको ये बात समझना है, आइगन वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए? इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए आइगन वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए आइगन वैल्यू होता है h कट बाय 2, समझ रहे हो? आइगन वैल्यू होता है
H कट बाय 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए, लेकिन कहां पे है भाई इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए आइगन वैल्यू H कट बाय 2 पाई, लेकिन हम हमारा है ना वो रेड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। H कट क्या होता है भाई? H कट होता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट था, लेकिन हमारा ऑप्शन पे एच कट पे ऑप्शंस नहीं दिया, उन्होंने दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट पे h बाय 2 पाई होता है, एच कट होता है h बाय 2 पाई, h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, खाली प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब चले, अब सब्स्टिट्यूट करो इधर, आइगन वैल्यू इज इक्वल टू h बाय 4 पाई, समझ रहे हो? बस यही हमारा आंसर, h कट h बाई 4 पाई। ठीक है, चले कहां पे भाई? h बाई 4 मिल गया, ये भी मिल गया। चले हम चलेंगे हम 87 क्वेश्चन पे ऊपर, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चल अब चलेंगे हम 87 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोस अ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? व्हाट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन गाइस? देखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है ना, एक क्यों होता है, एक कहां पे होता है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन डीजेनेरेसी को रिड्यूस करने के लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मतलब कि सिमिट्री ऑफ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज करने के लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। कहां पे सिमिट्री है ना वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, कहां पे अनसिमिट्री है ना वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट 2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस एंड आयरन 2 प्लस में किसमें अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैरेक्टर है, वहां पे जेटीडी वो होता है, वो ही हमारा सही आंसर है। अब दिखाऊंगा मैं, अब दिखाऊंगा मैं कैसे जेटीडी करना है। जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट 2 प्लस एग्जांपल ले लेंगे हम। कोबाल्ट 2 प्लस पहला लो स्पिन कर लेंगे, हाई स्पिन कर लेंगे। ठीक है, लो स्पिन का कर लेंगे पहले, T2G है, EG है, फिल करो इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट है D7 है। ठीक है, फिल करो। लो स्पिन, लो स्पिन मतलब क्या है भाई? लो स्पिन मतलब कि इसमें स्पिन स्पिन पेयरिंग हो रहा है। लो स्पिन मतलब कि आई स्पिन पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, स्पिन पेयरिंग होता है पहले। कितना हो गया? 6 हो गया, 7। देखो ये सिमेट्रिक नहीं है एज जेटीडी, ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। सिमेट्रिक कैसे होना चाहिए? देख, सिमेट्रिक के लिए ना हमारा 3 कंडीशन है, ये तो ऐसे होना है, वरना 2 3 4 5 6 ऐसे होना है, नहीं तो 1 2 3 4 5 ऐसे होना है, नहीं तो पूरा काली होना है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 फुलफिल होना है। ठीक है, इट्स 5 कंडीशन है ना, ये 5 कंडीशन पे नो जेटीडी है। ऐसे वाला आ गया तो ये नो, इट्स नॉट अ जेटीडी है। D3 आ गया, जेटीडी नहीं है। D6 आ गया, D6 लो स्पिन होना चाहिए। ठीक है, हाई स्पिन हो गया तो नहीं होता है। ठीक है, और देखो D3 ए हाई स्पिन होना चाहिए, लो स्पिन नहीं। सॉरी, नो, कोई भी हो, कोई भी हो, सॉरी। और देखो ए कौन सा होना चाहिए? D5, D5 हाई स्पिन होना चाहिए। ठीक है, बस देख लो, ए हो गया ना, इसका मतलब कि इसमें नहीं है। देख, ए कंडीशन नहीं है, एज ए जेटीडी है। ठीक है भाई, इसका हो गया तो इसका जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेंगे हम क्या हो सकता है। 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ दोनों, इसमें भी नो जेटीडी है, एज जेटीडी है। ठीक है, जेटीडी है। चले, कोबाल्ट 2 प्लस का हो गया, अब कर लेंगे कौन सा दिया है, और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास मैंगनीज 2 प्लस एंड Fe2 प्लस।
मैंगनीज 2 प्लस एंड Fe2 प्लस। मैंगनीज 2 प्लस को कर लेंगे, पहले लो स्पिन कर लेंगे, बाद में आई स्पिन कर लेंगे। ठीक है, लो स्पिन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इट्स अ D5। चेक करो D5, 1 2 3 4 5, हाँ JTD है। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5, हाँ सिमेट्रिक है, देखो सिमेट्रिक है, डीजेनेरेसी है इसमें, इसलिए नो JTD है। ठीक है, सॉरी सर, इसमें क्या हो गया, इसमें सिमेट्रिक है, नो JTD है। ठीक है, बस अब देखो, अब हमारा कौन सा है, Fe2 प्लस है। ठीक है, Fe2 प्लस कर लेंगे, Fe2 प्लस लो स्पिन और आई स्पिन कर लेंगे। Fe2 प्लस में कितना है, D6 से होता है ना, Fe2 प्लस D6 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5। ठीक है, ये लो स्पिन का है, 1 2 3 4 5 6, हाँ देखो ये क्या हो गया भाई, JTD है ना इसमें, JTD है क्या इसमें, देखो हाँ JTD है, नो JTD है, JTD नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिकल है भी, देख सिमेट्रिक है, दोनों सेम ही है, ए भी सेम ही है। ठीक है, और आई स्पिन देखो 1 2 3 4 5, हाँ सिमेट्रिक नहीं है, देखो इस ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन इसमें नीचे देखो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिमेट्रिक नहीं है, सो एज JTD। समझ रहे हो, मतलब कि Fe2 प्लस के पास भी JTD है, और मैंगनीज 2 प्लस के पास, और कोबाल्ट 2 प्लस, सो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। समझ रहे हो, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब चलेंगे 88 क्वेश्चन के ऊपर, 88 क्वेश्चन। अब देखो 88 क्या बोलते हैं भाई, 88 है ना, 88 क्या बोल रहा है, 88 बोल रहा है which the following is incorrect representation of order of a reaction। भाई ये देखो, ये तो इतना आसान है ना, आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए आसान कब है, हमको आंसर पता होगा था ना, उसके बाद ही हमको आसान हो जाता है। लेकिन देखो ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन इधर फर्स्ट ऑर्डर, इधर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, नन ऑफ दिस, ये दिया है कुछ नहीं दिया है, गलत है भाई, सब कुछ गलत है। क्यों, ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर होता है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकता है, थियोरेटिकली नहीं है। इसमें दिया है N2 हो, O2 प्लस फर्स्ट ऑर्डर, कैसे भाई फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है क्या, नहीं हम ऐसे नहीं बोल सकता है, ये गलत है। मतलब देखो एक्सपेरिमेंट जैसे बोल सकते हैं क्या, इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, which of the following is incorrect representation in the following order for reaction। हाँ देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइनिंग फैक्टर है ना, ऑर्डर फाइंड करने वाला। लेकिन ऑप्शन ए में दिया है N2O5 2N2 ऑफ O2 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, मान लेंगे हम। और सेकंड वन 2CH3O इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, H2O2 माइनस 2I प्लस H2O2 माइनस प्लस I2, इसका भी नहीं दिया है, मतलब कि इसका ऑर्डर नहीं बोल सकते हम। मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो है, ठीक है, मतलब वो बोल रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हम मान लेंगे, इसका भी मान लेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है वो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको ये चीज पता है ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, थियोरेटिकल फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके वजह से नन ऑफ दिस है इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट है सब, या कुछ कोई इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि उन लोग, मतलब समझ रहे हो मेरा बात, कहने का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, थियोरेटिकली ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन उन लोग रिएक्शन दिया है। ठीक है, उसका कुछ कुछ क्या मतलब कुछ का कुछ प्रूफ भी नहीं है कैसे कैसे, लेकिन उन लोग परफेक्टली दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बस। लेकिन हम इसको मान सकते हैं इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चल हम चलेंगे 89 के ऊपर। चलें, what which of the following pair has the same electronic structure, which of the following pair has the same electronic structure,
देख लो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कौन किसमें सेम ही है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम कब होगा, कब इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम किस पे, देख लो, एजी है, टिन है, सिल्वर है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आर्गॉन है। आर्गॉन और कैल्शियम तो अलग है, ये तो नहीं हो सकता है। सोडियम और मैग्नीशियम हो सकते हैं क्या, नहीं, सोडियम ज्यादा है, मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सोडियम सॉरी मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैग्नीशियम प्लस होगा है ना, Mg प्लस सोडियम Na, ये दोनों का ठीक हो सकता था, लेकिन हमने दिया है Mg Na प्लस, नहीं, ये भी दोनों गलत है। लेकिन इसमें आ जा, आर्गॉन और क्लोरीन, हाँ भाई, क्लोरीन को हमको पता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, ये ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि आर्गॉन और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ठीक है, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग 90 पे ऊपर, ठीक है, 90 पे ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देख लो, इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा है किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो फर्क नहीं पड़ते, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है वो फर्क नहीं पड़ते, हमको फर्क पड़ता है क्या है इसमें, मतलब इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसमें नेचर क्या है वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ ये पता है हमको, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन रिलेटिव इंक्रीज इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हो, हाँ, बस इतना आसान है भाई। देखो, अब देखो 91st पे ऊपर आ जाना, क्या है भाई, 91st क्या बोल रहा है, 91st बोल रहा है कि which of the following statement is false, देख लो, अब इसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, पता है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है क्या गैल्वेनिक सेल पे, कैथोड पे, नहीं भाई, क्या होता है, रिडक्शन होता है भाई, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है ना कैथोड पे, ये तो गलत है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, द पोटेंशियल ऑफ अ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइन्ड अ वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट्स, हाँ ये तो पक्का है, हमको पता है SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम असाइन क्या है, ई नॉट वैल्यू है क्या, ई नॉट वैल्यू असाइन क्या है, इसका 0 है, उसके इससे मतलब हम इसको स्टैंडर्ड लेके मतलब बेस वैल्यू लेके उसको नीचे आने वाला को क्या बोलते हैं, नेगेटिव लोग को क्या बोलते हैं, H0 टू नेगेटिव को, उसको हम बोलते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऊपर वाला को क्या बोलता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। देखो, हमको पता है 0 था इसको हाइड्रोजन का, और नीचे नेगेटिव वाला को क्या बोल, नेगेटिव वैल्यूज, लेस रिडक्शन पोटेंशियल, नेक्स्ट लेस रिडक्शन पोटेंशियल लाइक लिथियम -3 है, ऊपर देखो +3 तक आएगा, उसको बोलते हैं मोर रिडक्शन पोटेंशियल, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और चले, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल कैन बी मेजर्ड विद द वोल्टमीटर, हाँ भाई, ईएमएफ कहां से मेजर करता है, वोल्टमीटर है ना, मतलब कि कितना है, वोल्टेज कितना चल रहा है ना, वोल्टमीटर से मेजर करता है ना, हाँ। अब और देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ एनोड एंड अ गैल्वेनिक सेल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड गैल्वेनिक सेल, हाँ ये करेक्ट है ना, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है ना, देखो एक सेल दिखाता हूं मैं, सेल दिखाता हूं, है ना, इसमें सॉल्ट ब्रिज अटैच्ड है इधर,
ठीक है, इसमें सॉल्ट अटैच्ड है और इसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इलेक्ट्रोड्स इधर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड का सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है, मेटल का सोल्यूशन है, ये मेटल है, कोई भी मेटल ले लो, इसका मेटल सोल्यूशन है, ठीक है। ये दूसरा मेटल है, इसमें डाल दो मेटल सोल्यूशन, इसका ही मेटल सोल्यूशन चाहिए हमको, ठीक है। हम इसको मान लेंगे कॉपर, कॉपर होता है क्या, चल कोई भी हो, हमारे लिए वो नहीं चाहिए अभी। अभी इसको कनेक्ट कर लेंगे वोल्टोमीटर पे, ठीक है। चले इसको कॉपर ही मान लेंगे, ठीक है, कॉपर, कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, सॉरी जिंक मेटल है, इसको हम मानेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। बस देखो भाई, अभी है ना, अब रिएक्शन शुरू हो, चालू हो गया, रिएक्शन चालू हो गया इधर से, इसको इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, लोन ले लो, लोन, क्या भाई, क्या लोन लेगा तू क्या, नहीं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, है ना, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इधर पे क्या है, इधर पे कैथोड है, ये तो एनोड है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे भाई देखो, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर था, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कहां पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें क्या होगा, इसमें जिंक 2 प्लस सोल्यूशन था, जिंक 2 प्लस सोल्यूशन पे एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट आ गया था, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बन गया, मतलब इधर रिडक्शन हो चुका है, इधर ऑक्सीडेशन हो चुका है, समझ रहे हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे रिडक्शन हो गया। अब ठीक है भाई, सब ठीक है, अभी तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज हो गया भाई, सॉल्ट ब्रिज यूज हो गया कि आयोन्स ट्रांसफर के लिए, सॉल्ट ब्रिज यूज हो गया फॉर आयोन ट्रांसफर। कौन सा आयन भाई, देख अभी तो जिंक 2 प्लस था, तो पूरा जिंक होके मेटल इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया जिंक, तो SO4 2 माइनस क्या हो जाएगा भाई, SO4 2 माइनस क्या करेगा, अभी SO2 माइनस इस साइड पे ज्यादा हो गया, इसलिए क्या करेगा, तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इधर जाके बैलेंस करेगा, सॉल्ट ब्रिज होता है कि बैलेंसिंग ऑफ आयन, बैलेंसिंग ऑफ आयन्स के वजह से हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, वरना तो पोटेंशियल तो अलग होके इसका अलग हो जाए, ठीक है। हमको हम देख लिया कहानी क्या हो जाएगा, वो पता है, ऑक्सीजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड, सच है, EMF ए भी सच है, पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ए भी सच है, लेकिन हे गलत है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, हमारा आंसर यही है, ठीक है, यही है हमारा आंसर। चल हम चलेंगे 92 के ऊपर, क्या बोलते हैं 92 भाई, चल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंडक्टर, देखो सुपर कंडक्टर के लिए आपको पहले देखना होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, चलो भाई देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सुपर कंडक्टर, कौन सा कंपाउंड सुपर कंडक्टर होता है, इस पे एक चीज ध्यान रखना है, नॉर्मली YbCO, YbCO, एट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड्स, समझ रहे हो, एट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड्स, एट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड्स, हाँ ये होता है सुपर कंडक्टर, ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर, मतलब कि सुपर कंडक्टर क्या होता है भाई, एट्रियम, बेरियम, कॉपर क्या होता है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं कि
हाई टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी जैसे बिहेव करता है। हाई टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, पूरा हाई टेम्परेचर पे ये कंपाउंड, ये ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड सुपर कंडक्टिविटी जैसे बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। Ba2 कॉपर 3O7 3 माइनस ए सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। ठीक है, बस यही है हमारा आंसर। एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि ना इसको ये तो याद करने वाला चीज है, क्योंकि हमको नॉर्मली प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन सा सुपर कंडक्टर होता है, नॉर्मल सुपर कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, बेरियम कंपाउंड्स होता है ना, ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर्स होता है। एक्चुअली द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज फॉर्म्ड इज द सेम बेरियम इटसेल्फ। ठीक है, एट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड्स इज द फर्स्ट सुपर कंडक्टर व्हिच वाज फाइंड आउट। ओके, हम चलेंगे ईडीटीए के ऊपर। क्या क्या बोल रहे हैं भाई, ईडीटी पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? Which of the following plays a major role in a EDTA complexometric titration? चल, EDTA complexometric titration पे क्या देखना है भाई, इसमें हमको क्या लेना देना है इसमें? देखो, इसमें बोल रहा है कि मेजर रोल क्या होता है ईडीटीए का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल होता है क्या? नहीं, ईडीटीए में मेटल क्यों होता है भाई? ये तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे ईडीटीए लिगेंड जैसे एक्ट करता है ना, लिगेंड जैसे मतलब कि ईडीटीए ना लिगेंड जैसे एक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड नहीं, कॉम्प्लेक्स ईडीटीए तो लिगेंड है वो पता है हमको, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ईडीटीए डाल लेते हैं, वो तो मेटल पास बाइंड करता है, लेकिन वो तो सेकंड, वो तो बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और टाइट्रेशन में क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स और टाइट्रेशन में हम क्या देखता है? हम पीएच देखता है ना, हम पीएच देखता है। इसका मतलब कि इसमें बफर सॉल्यूशन मतलब कि पीएच को वेरी करने वाला होता है ईडीटीए। समझ रहे हो? एट अ स्पेसिफिक पीएच रेंज में ईडीटी काम करता है। इसका मतलब कि नेचर ऑफ अ बफर काम होता है, मेजर रोल होता है इसका ईडीटीए का, नेचर ऑफ अ बफर पे काम करता है। ठीक है, ईडीटी मतलब कि नेचर ऑफ अ बफर होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कब? ईडीटी डाइटेशन के टाइम पे। मतलब बफर का इतना पीएच होना चाहिए कि 5 to 6 7 to 8 मतलब पीएच हो जाए, मतलब पीएच ज्यादा हो गया, ईडीटीए का लेस पीएच होना चाहिए और न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। मतलब बफर वेरी करता है ईडीटीए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए हम चलेंगे 94 के ऊपर। क्या बोल रहा है? 94 बोल रहा है कि पायरोसिलिकेट्स आर सिलिकेट्स इन विच टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर लिंक्ड टू। हाँ देखो भाई, पायरोसिलिकेट है ना, कैसे लिंक होता है पायरोसिलिकेट्स? किसके साथ लिंक होता है? कौन सा यूनिट होता है इसका लिंक करने के लिए? हाँ, दिस इज पायरोसिलिकेट्स। ठीक है, नॉर्मली 3D फॉर्म है, हम नॉर्मल लिख लेंगे। सिलिकॉन है, ओ सॉरी, ओ माइनस है, ओ है, तो दोबारा सिलिकॉन के बाइंड करेगा। ठीक है, देखो दिख रहा है ना आपको, कितने यूनिट में जॉइन हो रहा है? पायरोसिलिकेट्स आर सिलिकेट्स which the two tetrahedral units are linked to। ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट है ना, टीडी फॉर्म है ना, टीडी स्ट्रक्चर है ना, लिंक टू किस में लिए? लिंक टू ओ वन पॉइंट, लिंक टू ओनली अ वन पॉइंट, ओनली कितना पॉइंट है? ओनली वन पॉइंट। ठीक है, समझ रहे हो? वन पॉइंट बस। ठीक है भाई, टेट्राहाइड्रल यूनिट है पायरोसिलिकेट्स का, किस पे लिंक हो रहा है? लिंक हो रहा है एक ही एटम, मतलब एक ही ऑक्सीजन के साथ लिंक हो रहा है बस, और किसी के साथ नहीं। ठीक है, बस चले हम 5 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन है, हम खत्म कर लेंगे जल्दी। इजी क्वेश्चन है नॉर्मली, टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, हम ऑर्गेनिक जैसे वाला टिपिकल तो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन से देख। ये देखो 50 से 90 क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस में
नंबर ऑफ एटम बिलोंगिंग एक्सक्लूसिव टू यूनिट सेल विद, देखो ये तो कितना आसान है ना भाई, देख हमको पता है एफसीसी का नंबर ऑफ एटम्स कितना भाई, जेड वैल्यू 4 है ना। कैसे भाई, देखो एक यूनिट सेल पे कॉर्नर्स, देखो कॉर्नर्स कितने साथ शेयरिंग करेगा, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस फेस इंटरेस्ट कितना है भाई, फेस मार्क कर लेंगे हम, एक एक है ए वाला, ए वाला है, और नीचे वाला और ऊपर वाला कितना फेस है भाई, हाँ 1/3 है इंटू 6 फेस, 6 साथ शेयरिंग करता है, मतलब कैसे 3 फेस है ना, देख ए 1 फेस है, 2 फेस है, ठीक है, और A1 मतलब दोनों सेम अपोजिट अपोजिट फेस है, ए किसके साथ शेयरिंग करता है, ए और दूसरा सेल के साथ शेयरिंग करता है ना, दूसरा यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है, ए भी दूसरा, मतलब कि 1/8 1 प्लस 2 कितना है, सॉरी 1/2, सॉरी वही तो देख रहा हूं मैं, क्या कहा गलती हुई है, देख हाँ 6 6 शेयरिंग से 6 6 क्या है, सॉरी 6 फेसेस है, ठीक है 6 फेसेस है, 6 फेसेस 1/2 मतलब 1 के साथ नहीं, एक फेस है 2, देख एक ही एक ए वाला फेस है, ठीक ए वाला फेस एक यूनिट सेल के साथ और हमारा यूनिट सेल के साथ, मतलब कि दो है ना, 1/2 शेयरिंग होता है ना, 1/2 शेयरिंग, और ए वाला फेस देखो, ए वाला फेस है क्या, और ये दूसरा यूनिट सेल के साथ 1/2, सो मतलब कि 1/2 इंटू 6 3, सो मतलब कि टोटल 4 एटम्स है, 4 एटम्स, ठीक है। हमारा क्रिस्टल एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द ईच यूनिट सेल इज अ 4, ठीक है, एफसीसी में 4 है, और क्यूबिक सेंटर लाइक क्यूबिक है, क्यूबिक पे 1 है, और बीसीसी में 2 है, ठीक है। चल हम चलेंगे नेक्स्ट, Langmuir adsorption isotherm equation shows the various extent adsorption of a function, variation of extent adsorption, Langmuir adsorption isotherm के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। थीटा इज द adsorption of a Langmuir kappa kp pressure by 1 plus kp, ठीक है। देख ए होता है फॉर्मूला फॉर अ Langmuir adsorption isotherm, Langmuir adsorption isotherm, ठीक है, फॉर अ मोनो ओनली, फॉर अ किसके लिए, फॉर अ मोनो थिंग, ओके, फॉर मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है। बस अब देखो एक्चुअली मोनो एटॉमिक के लिए फॉर एन एटॉमिक होता है ना, थीटा इज इक्वल टू केपी बाय 1 प्लस केपी टू द पावर ऑफ एन, समझ रहे हो, एन फॉर डायटोमिक के लिए एन इज इक्वल टू 2 होता है, और 3 4 ऐसे हो सकता है, ठीक है। बस देखो अब थीटा मतलब कि आइसोथर्म एक्सटेंशन, लाइक आइसोथर्म किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड है। देख लो हमने क्या दिखा है, लैंगमर एडसॉर्प्शन इक्वेशन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन थीटा डिपेंड हो रहा है ओनली प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर तो बात ही नहीं कर रहा है, पीएच तो इधर आता ही नहीं है, तो हमारा आंसर है प्रेशर, ठीक है भाई। बस चले हम अभी चलेंगे 97 के ऊपर, 97 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स बीट्स लॉ, बीट लैम्बर्ट्स लॉ बोल सकते हैं और लैम्बर्ट बीट्स लॉ बोल सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसमिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसमिटेंस, भाई देखो इसके लिए हम बोल सकते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला से कैसे भाई,
देखो, absorbance is equal to absorptivity coefficient into concentration into length. ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, को अब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट है ये अब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट है, ठीक है, मोलर अब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट। लेकिन ये अब्जॉर्बेंस कैसे भाई? हमको पता है अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log ऑफ 1/t। सो सब्स्टिट्यूट करें इसके ऊपर, log ऑफ 1/t इज इक्वल टू t इज अ ट्रांसमिटेंस, अब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट सी कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। मतलब कि हमारा आंसर मिल गया। कैसे मिल गया? देख, बी सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसमिटेंस किसके ऊपर डिपेंड है? अब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट के ऊपर। हाँ, अब्जॉर्बिटी कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, हाँ, लेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉरी, पाथ लेंथ ऑफ अ सेम सैंपल होल्डर, हाँ, कवेट होता है इसमें। कवेट कुछ एक चीज होता है कवेट, मतलब कि इसके अंदर हम सॉल्यूशन डाल के हम मेजर करता है, ठीक है, इसका लेंथ डिपेंड होता है, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होता है। देखो, फॉर्मूला से हम सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड ना हो उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा काम हो गया, हम चलेंगे 98 के ऊपर, ठीक है। देखो, 98 क्वेश्चन पे ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैसेस Z is equal to PV by RT बाई आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिव फैक्टर होता है 0। बस, PV बाई RT कंप्रेसिव फैक्टर 0 होता है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। चले, अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद हो रहा है इधर। भाई, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करता है? थर्मल स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है सिंपल वे पे। कैसे? देखो, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होते होते है ना, मतलब कि ऊपर टू, मतलब कि अल्कली मेटल से नीचे होते होते थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अभी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो कैसे इंक्रीज होता है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है भाई? डाउन द ग्रुप कौन सा ग्रुप मेटल्स आता है? पहले आता है बेरिलियम, आता है क्या डाउन द ग्रुप? नहीं, पहले कौन सा आता है? कैल्शियम आता है। पहले कौन सा है? कैल्शियम है। और नेक्स्ट आता है पोटेशियम है, नेक्स्ट आता है सोडियम है, नेक्स्ट आता है बेरिलियम, ठीक है। देखो, ये चारों है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। बस, चले, हमको आंसर क्या है? देखो, फर्स्ट वन कौन सा है? फर्स्ट आना चाहिए कैल्शियम है, फर्स्ट कैल्शियम होना चाहिए। उसके बाद पोटेशियम होना चाहिए फर्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड है कैल्शियम का, फर्स्ट है। उसके बाद आना चाहिए, ये क्या पूछा है? सोडियम नहीं पूछा ना, मैग्नीशियम। चल ठीक है, इसको मैग्नीशियम मानना है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है। वहां आता है कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में है? तो सेकंड पे है। उसके बाद लास्ट में आता है कौन सा? बेरिलियम। बेरिलियम कौन सा है भाई? थर्ड। फोर्थ है। देख लो ये ऑर्डर, देख लो कहाँ पे है ये ऑर्डर, ऑप्शन बी में है, ठीक है। नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, बस यही है हमारा, हमारे लिए चाहिए डाउन द ग्रुप। देखो, किसका डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप मतलब किसमें साइज इंक्रीज होता है ना, इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो, बस। चले, हमको मिल गया 99। हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है लास्ट। देख, पूछ रहे कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ अ लिथियम, देख मान लेंगे ये लिथियम मेटल है, ठीक है। लिथियम मेटल का रेडियस बोल रहा है 123 पिकोमीटर, ठीक है भाई। लिथियम का लिथियम का रेडियस है 123 पिकोमीटर,
द क्रिस्टल रेडियस क्या होता है भाई? भाई क्रिस्टल रेडियस क्या है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल मतलब कि इसमें कितना यूनिट सेल हो सकता है भाई? क्रिस्टल डिपेंड होता है ना, कितना यूनिट सेल होता है, कितना यूनिट सेल ना होता है ना? एक एक क्रिस्टल में बहुत सारा यूनिट सेल होता है ना? मतलब 1 यूनिट सेल, इसके लिए हम एक चीज बोल देता हूं मैं, एटम्स, ठीक है? लिथियम ये एटम है, सॉरी एलिमेंट मान लेता हूं, ठीक है? एलिमेंट है और एटम है, ठीक है? 1 lithium can't make a 1 unit cell. हम ऐसे बोलेंगे, वन क्रिस्टल पे, वन क्रिस्टल इज ग्रेटर देन 1 unit cell, 1 unit cell इज ग्रेटर देन 1 atom. मतलब कि बहुत सारा एटम जोड़ के 1 unit cell बन, मतलब 1 और 2 ग्रेटर देन 1 जोड़ के यूनिट सेल बनता है। यूनिट सेल कब बनता है? मोर देन 1 unit cell मेक्स अ क्रिस्टल। इसका मतलब कि क्रिस्टल में ज्यादा यूनिट सेल होता है। क्रिस्टल में एक क्रिस्टल है, ठीक है? एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर ज्यादा यूनिट सेल होता है, ये यूनिट सेल्स है, ठीक है? इसके अंदर डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट, ये होता है एटम्स, ठीक है? ये होता है एटम। इसका मतलब कि हमको ये नॉर्मल चीज है, ग्रेटर देन 123 पिकोमीटर होना चाहिए रेडियस, है ना? ग्रेटर देन 123 पिकोमीटर, इक्वल टू 120 नहीं भाई, नहीं हो सकता है। लेस देन वो भी नहीं है, डिवाइड बाय 2 वो भी नहीं, नो चांस, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ऑप्शन डी होता है, ठीक है? समझ रहे हो भाई? बस देखो, नॉर्मली आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्रिस्टल ये तो बड़ा है, यूनिट सेल उसके अंदर, मतलब बहुत सारा यूनिट सेल जोड़ के एक क्रिस्टल बन जाता है, और यूनिट सेल के अंदर बहुत सारा एटम, मतलब कि एटम का डबल डबल करने के लिए, डबल करने के बाद हमको क्रिस्टल बनता है, ठीक है? क्रिस्टल बनता है, मतलब कि लोग पूछ रहा है लिथियम का 123 पिकोमीटर रेडियस है, लेकिन क्रिस्टल का रेडियस इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ लिथियम नहीं बनता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस इस बहुत कम है, क्रिस्टल रेडियस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि ग्रेटर देन 123 पिकोमीटर होता है, ठीक है? बस देखो, आज हम खत्म किया सेक्शन 6 पे, हम खत्म किया क्या है? हम खत्म किया 2018 पेपर, ठीक है? चले, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 2018 पेपर हो गया, खत्म किया। हम अभी नेक्स्ट पेपर चलेंगे 2017 पेपर, वो हम अगले सेक्शन में शुरू कर लेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।